ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲੋਕ ਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਸਦੀ ਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ, ਨਾ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ, 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਸਐਮ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝੌਤਾ ਦਾ ਦਰਖਤ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ 10 ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਸਟ ਰੋਕਤੀ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੇ ਵੀਰੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਖੋਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ है। जी वीर जी, ये प्यार है भाइयों का जो इतना सुन रहे हो। और हमने सिर्फ सच्चाई ही बताई है, जो सच्चाई हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। जो एक झूठा मतलब प्रोपगंडा चलाया जा रहा है सिखों के खिलाफ, पंजाब के खिलाफ, पूरे पंजाब को बदनाम करने का एक प्रोपगंडा बना दिया इन लोगों ने। उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई है। जब हमारे को जरूरत पड़ती है तो हमारे सिख भाई आवाज उठाते हैं। तो ये तो फर्ज है हमारा सबका बताना लोगों को कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ? ऐसा है वीर जी, सबसे पहले तो जो किसान यूनियन या किसान जत्थेबंदियां करना चाहते हैं, जो भी जत्थेबंदी खुद चुनाव लड़ने के लिए बोलती है या किसी पार्टी विशेष का प्रचार करती है, वो सब पैसा लेने देने का मामला होता है। और हमारी खुद की पसंद जोगिंदर सिंह उगराह जी इसलिए है, ना तो इन्होंने आज तक किसी पार्टी का प्रमोट किया है, ना कभी लोगों को ये बोला है। तभी लोगों का ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव इनसे क्यों है, आज तक लोग समझ नहीं पाए। आज मैं सबके बीच में रखना चाहते हैं क्योंकि क्यों जोगिंदर सिंह गुराजी को पसंद किया जाता है। वो सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर लड़ते हैं जो एक आम आदमी का मुद्दा होता है, चाहे वो गरीब का मुद्दा है या किसान का मुद्दा, किसी का भी मुद्दा है, जो सच्चाई होती है उनके साथ वो खड़े होते हैं। और उन्होंने ये बात एक बार नहीं बार बार क्लियर की है। ना तो कभी चुनाव लड़ेंगे, वो बोलते हैं कि जरूरी नहीं है, अगर हमने सिस्टम को बदलना है तो हमारे को चुनाव लड़ना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। हो सकता है कीचड़ हमारे दामन पर भी लगेगा, जो राजनीति में आया है वो बच नहीं सकता इस कीचड़ से, दाग लगेगा ही लगेगा अगर आप राजनीति में आते तो। और मेरा जो पसंद करने का उनको जो नजरिया था यही था। उन्होंने कभी कोई राजनीतिक बात नहीं की, ना ही वो कभी करते हैं। वो स्पष्ट बोलते हैं कि आप लोगों से दिल से जुड़िए, उनकी आवाज दिल से उठाइए, लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। मेरे साथ इतने भाई जुड़े हैं जो, वो इसलिए जुड़े हैं कि मेरे को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ना किसी पार्टी विशेष से मतलब है। हाँ, जो अच्छा है उसके बारे में अच्छा बताते हैं। अभी जो चला पंजाब को बदनाम करने का, सिखों को बदनाम करने का, ये चालें पहले कामयाब हो गई थी, अब कामयाब नहीं हो सकती। अब लोग जागरूक हैं। और जो 22 जत्थेबंदियां चुनाव लड़ रही हैं, अभी शामिल उनमें चढ़ूनी भी है, वो अब एक का कर रहे हैं। तो ये तो वही सियासत होगी ना जो राजनीतिक पार्टियां करती हैं, अलग अलग पार्टी बनाओ फिर उनको एक कर दो। ये सब सियासती चालें होती हैं जो अब लोगों को पूरी तरीके से समझ में आने लगी।
और उग्रा जी का जो फैसला है किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट ना करने का, किसी को वोट पाने की अपील ना करने का, उनका हम दिल से स्वागत करते हैं। और पूरा हरियाणा और हरियाणा की जनता जो उन्हें दिल से प्यार करती है, उनके साथ खड़ी है और उनके फैसले का स्वागत करती है। अगर आप सही मायने में लड़ाई लड़ना चाहते हैं, सबने देखा 13 महीने हम बॉर्डर पे बैठे थे, उन बुजुर्गों को जो बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए थे, आप कभी उनसे मिलोगे ना, उनकी इतनी आत्मा दुखी हो रखी है। जब इन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया था ना, वो लोग रोए हैं अपने घर में जाके कि इन्होंने क्या किया, हमारे कंधे पे बंदूक रख के, और ये खुद राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। यही तो बीजेपी बोल रही थी कि ये तो राजनीति करने वाले लोग हैं, और इन्होंने वही साबित कर दिया। अब इसका जवाब पंजाब की जनता देगी। आप भी देखना वीर जी, जिस दिन फाइनल होगा उस दिन भी हम बात करेंगे। कैंडिडेट अगर इनका सत्ता में आ जाए या 1000 वोट भी ले जाएगा ना, तो गारंटी इस चीज की लोगों की समझ में आने लगा कि ये लोग क्या करते हैं। जो बीजेपी ना, बीजेपी ये बहुत बड़ा षड्यंत्र करते हैं। पार्टी होती है उनको तोड़ते हैं सबसे पहले ये। अभी जब 9 साढ़े 9 साल तक कांग्रेस ने राज किया, जब उनसे सवाल करने का समय आया मुख्यमंत्री से, कैप्टन अमरिंदर सिंह से, उस समय पे उनको इस्तीफा दिलवा दिया, अलग पार्टी बना दी और बीजेपी को समर्थन दे दिया। अभी तो सवाल पूछने का मौका आया था। तो ये तो बीजेपी की चाल है, अलग अलग पार्टियां बना के अंदर जेजेपी नामक पार्टी बनाई। जो हरियाणा में इन्होंने जेजेपी नामक पार्टी बनाई थी, अलग से पार्टी बनाई थी एक इनेलो बड़ी पार्टी को तोड़ के, उस समय पे इनेलो सत्ता में आने लग रही थी, लोगों का कि विश्वास, उस जेजेपी को लोगों ने वोट दिया था कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे, और उनकी 10 सीटें आ गई। 10 सीटें आने के बाद उन्होंने फिर बीजेपी को समर्थन दिया, और इस प्रकार इनकी सरकार हरियाणा में बनी। तो जो ये अलग अलग पार्टियां बना रहे हैं ना जो लोग, वो सीधा सा मतलब है ये वो बीजेपी को समर्थन देंगे। अब ये चीजें लोगों को समझ में आने लगी है, और यही हम लोगों को बार बार बता रहे हैं कि आप है ना इस राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में छोड़ के आप अपनी लड़ाई को लड़िए। सिस्टम को अगर आपको बदलना है तो बहुत लंबी लड़ाई है, ये कई साल तक चलेगी। आपको 3 कानून रद्द करवाने के लिए 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पे बैठना पड़ा था। और अगर आप पूरे सिस्टम में बदलाव चाहते हो, अगर आप चाहते हो किसानों को उनकी पूरी मांगे मिल जाए, उनका कर्ज माफ हो जाए, C2+50 के आधार पर उनकी फसलों की खरीद हो जाए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो जाए, एमएसपी गारंटी मिल जाए, ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी वीर जी। 70 साल हो गए देश की आजादी को, आज तक नहीं मिल पाई एमएसपी। आज तक कभी किसी ने किसान का भला, अगर किसान को अपना भला करवाना है तो किसान को खुद लड़ना पड़ेगा, खुद आगे आना पड़ेगा। उसके लिए सभी लोगों को उन चेहरों को पहचानना पड़ेगा कि लोग क्या आते हैं। किसान भोला भाला होता है, ये वीर जी सबको पता है। किसान के अंदर ना तो राजनीति होती है, ना छल कपट होता है। वो सीधे दिल से लग जाता, जिसके साथ भी लगता है, लेकिन लोग उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, सफेद कपड़े पहन के आते हैं और राजनीति में घुस जाते हैं। इन चीजों को पहचानना पड़ेगा। अब समय आ गया, पंजाब की जनता ठोक के जवाब देगी। ਦੀਪਕ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਹਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਕਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋर्ट ਕਰਨ। ऐसा वीर जी, जोगिंदर सिंह उराव जी का स्टैंड पहले से ही क्लियर रहा आज तक उनका। कई जब से उग्रहा यूनियन बनी है तब से रिकॉर्ड है, आज तक उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, और ना ही कभी चुनाव लड़ने का बोला है। और अब तो कोई मतलब भी नहीं बनता है, क्योंकि लोग दिल से जुड़े हुए हैं इनके साथ। जो इनकी यूनियन की जो एक वो है ना स्ट्रेटजी बोलते हैं हम, जो बोलते हैं नियम कायदे कानून है, वो आर्मी की तरह स्ट्रिक्ट भी है और सभी लोग मानते भी हैं। वो इसलिए मानते हैं क्योंकि उनको पता है जब तक अगर नियम कानून कड़े नहीं बनाए जाएंगे तब तक हम जुड़ाव नहीं महसूस कर सकते। आर्मी में इतना प्यार क्यों होता है, कानून सख्त होते हैं। यही कारण है कि भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा जो है, उनके नियम कानून थोड़े सख्त है, और उससे लोगों को डर भी लगता है कि सख्ती से सभी को डर लगता है। आर्मी में हमने भी नौकरी की, हमारे को पता है, और वो खुद भी आर्मी में रह चुके उग्रहा जी। उन्होंने इसी प्रकार से नियम और कानून बनाए हुए हैं कि वो खुद ना तो कभी चुनाव लड़ेंगे, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करेंगे। और इन्हीं कानूनों की वजह से हरियाणा के जो बंदे जुड़े हुए हैं उनके साथ, या हम भी जुड़े हुए हैं, इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि वह बिल्कुल साफ सुथरी छवि के इंसान हैं।
वो लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, जो आम इंसान की, आम किसान की, मजदूर की जो लड़ाई होती है ना, वो लड़ाई लड़ते हैं वो। और उनका एक रिकॉर्ड और है वीर जी, जो किसी को नहीं पता होगा। उन्होंने जिस लड़ाई में हाथ डाला है उसको जीत कर ही वापिस बैठे हैं वो लोग, उससे पहले नहीं उन्होंने कभी भी बैठा है। जहां पर उन्होंने बोल दिया अब हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, तो ये निश्चित है कि उसमें 100% जीत की गारंटी है। हाँ, इसमें कुछ तक जत्थेबंदी आई थी, 22 जत्थेबंदी पंजाब की थी। चलो उनमें से भी जिनका पहले से रिकॉर्ड था, कोई एक बार कोई दो बार चुनाव लड़ चुका था, अभी इतना बड़ा आंदोलन जिसका पूरी दुनिया में गूंज थी, तो इनके मन में फिर वही लालच आ गया, फिर वही लोभ आ गया कि हाँ हम अभी बहुत बड़े नेता बन सकते हैं। जिसके दिल में नेता बनने का लालच आ गया ना, वो लोगों से दूर हो जाएगा, आम पब्लिक फिर उसको इतना प्यार नहीं देगी। और यही पंजाब की जनता समझ चुकी है। आप देखना जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा ना, 100 वोट भी मुश्किल हो जाएंगे इनके कैंडिडेट को लेना। अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता हर एक चीज को समझ चुकी है। ਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉਹ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਰਹਿ ਗਏ। ऐसा वीर जी पहले ही बताया गया था, अगर कोई भी चुनाव लड़ेगा उसको एसकेएम से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा जो बनाया गया था वो अराजनीतिक था, किसी भी राजनीति करने वाले आदमी का उसमें इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन ये किसी के अंदर की दिल की बात का पता नहीं लगता ना, कि किसके मन में क्या भावना होती है। ये थोड़ा सा एक रेस्ट करके देखा था हमने, 3 कानून वापिस हुए थे, ये सबको पता था, जनता की भी मांग थी, एमएसपी हमारे को नहीं मिली अभी तक, एमएसपी चाहिए। तो थोड़ा सा रेस्ट इसलिए किया गया था, ये देखने के लिए कि लोगों की भावनाएं क्या, जिनको नेता हमने बनाया है कहीं उनके मन में चुनाव लड़ने की तो नहीं आ गई। उसमें मार खा गई 22 जत्थेबंदियां पंजाब की, और सबसे पहले मार खाई हरियाणा से चढ़ूनी यूनियन ने। चढ़ूनी ने जो मार खाई है ना, वो मार किसी ने भी नहीं खाई। इन्होंने सबसे पहले घोषणा की कि हम चुनाव लड़ेंगे पंजाब में, हम बदलाव चाहते हैं। तो वो सब की समझ में आ गया था, लेकिन लोगों को एक चेहरा दिखाने के लिए कि कौन चेहरे हैं जो हमारी इस लड़ाई को कमजोर करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, वो चेहरा दुनिया के सामने रखना था, और वो जरूरी भी हो गया था। और वो चेहरा भी सामने आ गया, पूरी दुनिया ने देख लिया, हाँ इन लोगों के मन में था, ये सच्चे दिल से लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। और जब तक अगर हमारे सेनापति 4 हैं, 4 सेनापतियों मन से एक सेनापति के मन में भी ये आ गया ना कि मेरे को दूसरी सेना से समझौता करना चाहिए या उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना चाहिए, तो सेना कभी जीत नहीं सकती। और यहाँ तो 40 हमारे सेनापति थे, उनमें से 23 के मन में आ गया था कि हमारे को चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन लोगों के सामने बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते। वो चेहरा दिखाने के लिए कोर्सपॉन्ड किया गया था आंदोलन को, ताकि सबके सामने सबके चेहरे क्लियर हो सके, और वो क्लियर हो गए। एक बात जो मैं आंदोलन के शुरुआत में, मैं तब तक जोगिंदर सिंह गुराज से मिला भी नहीं था, तब मैंने बोला था, एक दिन ऐसे ही देखा था, इतिहास देख रहा था मैं पीछे का, मैं इस बंदे के अंदर दम है, कभी किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। फिर औरों के रिकॉर्ड धीरे धीरे चेक किए, तो सब ने कहीं ना कहीं राजनीति में इन्वॉल्व रहे थे, किसी ने 1 चुनाव लड़ा, किसी ने 2 चुनाव लड़े, ऐसे इन्वॉल्व रहे थे। तब हमने बोला था इस किसान आंदोलन की अगर रीढ़ की हड्डी कोई है तो वो जोगिंदर सिंह उग्राह जी हैं, और उन्होंने ये साबित करके दिखा दिया। कल जब पत्रकार इंटरव्यू ले रहे थे तब भी उन्होंने यही साबित करके दिखाया है। सही मायने में अगर आप किसान नेता बनना चाहते हो तो जोगिंदर सिंह उग्राह की तरह बन के लड़ो, नहीं तो इन किसानों का नाजायज फायदा मत उठाओ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਰੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ जी। ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰ ਖਾ ਗਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਰੂਨੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਮਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਮਝੌਤਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। नहीं बढ़ सकती वीर जी। अभी हमने जीत कहां पे हासिल की है? चलो 3 कानूनी सरकार ने बनाए थे, हमने 3 कानून वापस करवा दिए, लेकिन वो 3 कानून वापस करवाने में हमारे 13 महीने और 720 साथियों की शहादत देने के बाद हम 3 कानून वापस करवा पाए थे। किसानों की जो असली मांग है, संपूर्ण कर्ज माफ, फसल खरीद की गारंटी कानून, एमएसपी, भाई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, C2+50 के आधार पर किसानों की फसल की खरीद। अभी ये बताओ, किसान वापिस आ गए जो बैंक से लोन ले रखा है, कर्जा ले रखा है,
उनके लेटर बार बार किसानों के आ रहे हैं, किसानों की जो आत्महत्याएं की जो बढ़ रही है वो फिर बढ़ जाएंगी, तो हमने कहां पे जीत हासिल की है। और यही बात उग्रराज जी ने बार बार बोली थी, जो किसानों की असली लड़ाई है वो बाकी है, वो बहुत लंबी चलेगी। उसको लंबी चलाने के लिए हमारे को ये पहचानना है कौन हमारा सही सेनापति है और कौन गलत है। तो उसके लिए ये जरूरी था कि आम जनता को इन चीजों का पता लगे। हाँ, हम मानते हैं अगर उसी समय पे एमएसपी गारंटी भी हो जाती, जितने केस थे वो सभी वापस हो जाते, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो जाती, फिर अगर ये चुनाव लड़ते ना तो सही मायने में पूरी जनता इनका सहयोग करती और सर्वसम्मति से इनको मुख्यमंत्री बना देती, एमएलए बना देती। किसी कोई टक्कर में नहीं मिलता इनके में। लेकिन अभी जनता पहचान चुकी है कि ये तो ऐसे ही करते हैं। लड़ाई जो सही लड़ी वो जोगिंदर सिंह उग्राह जी ने लड़ी। आपको शायद पता नहीं होगा, जब ये बीच आंदोलन शुरू हुआ था, हम दिल्ली पहुंचे थे ना, उसके ठीक 2 महीने बाद जोगिंदर सिंह उग्राह जी के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोपगंडा रचा गया था कि ये तो कामरेड है, ये तो खालिस्तान का समर्थक है। इनके वहां पर फोटो एडिट कर करके लगाए गए थे, बहुत बड़ा वो किया गया था। तब भी इन्होंने कुछ नहीं बोला था, बिल्कुल शांति से रहे थे, एक ही बात कहते थे कि समय जवाब देगा। और उस समय ने जो आज जवाब दिया ना, पूरी दुनिया ने देखा भी और पहचाना भी है कि सही मायने में हमारे हकों के लिए लड़ने वाले कौन है। ਦੀਪਕ ਜੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। जी ਪਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ जी ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। जी ऐसा वीर जी, सबसे पहले तो 15 जनवरी को जो फैसला आना है, जो सरकार से मीटिंग है, ये हमारे को भी पता है कि ये सरकार इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है। अगर किसानों का सब पूरा भला हो गया तो फिर किसान क्यों किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा उठाएगा? कोई भी आदमी है देखो, अपने लालच में या अपने किसी स्वार्थ के लिए झंडा उठाता है, किसी भी नेता का या किसी राजनीतिक पार्टी का। भाई किसानों का भी स्वार्थ था, कोई नेता आएगा हमारा भला करेगा। लेकिन अब किसान भी पहचान गए हैं। 15 जनवरी की जो मीटिंग है, उसी मीटिंग को देखते हुए ये जो प्रोपगंडा पूरा चलाया गया ना, सिखों को बदनाम करने का, पंजाब को बदनाम करने का, ताकि देश के अंदर अराजकता फैल जाए और ये 15 जनवरी को बोल सके कि अभी तो देश में अराजकता है, हम मीटिंग नहीं कर सकते। ये उसी को मतलब आगे सरकाना चाह रहे थे, लेकिन बिल्कुल शांति से चल रहे हैं। 15 जनवरी की मीटिंग होगी, उसके बाद 16 जनवरी को जो किसान आगू जिन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है, उनको एसकेएम से निकाला जाएगा। ये भी कन्फर्म है, आप मान के चलिए इस चीज को। 16 जनवरी को उनके बारे में भी फैसला आ जाएगा और 16 जनवरी को ही ये फैसला आ जाएगा। अभी आंदोलन चलेगा, कितना लंबा चलेगा उसके हिसाब से उसकी रणनीति बनाई जाएगी, उसी हिसाब से लोगों को बताया जाएगा। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੇਸ ਨੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ जी ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? बिल्कुल बाहर किए जाएंगे। राज्यपाल जी की जो इज्जत जो सम्मान है उनका, जो उन्होंने आज तक लड़ाई लड़ी, उसका हम दिल से सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं और आज भी करते हैं। लेकिन अगर उनके मन में आ गया, अभी भी उनको मौका दिया गया था कि कम से कम राज्यपाल जी आप तो चुनाव मत लड़िए, आप लोग किसानों के दिलों में बसते हो। लेकिन ये अपने हाथों अगर अपनी उसको इज्जत को मान को खोना चाहते हैं तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सब पहले से एक चीज की घोषणा हुई थी कि एसकेएम अराजनीतिक रहेगा, जो राजनीति करेगा उसका एसकेएम से कोई संबंध नहीं है। अगर ये राजनीति में जाना चाहते हैं तो ठीक है, ये राजनीति कीजिए, हम ना तो इनका विरोध कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर इनको एसकेएम में कोई जगह नहीं है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਰਹੂਗੀ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ? ऐसा वीर जी, लड़ाई हमेशा सेना लड़ती है, लेकिन उनको एक सेनापति चाहिए। किसान वही है जिनके कारण ये जत्थेबंदियां बनी है, यूनियनें बनी है। उनको तो फिर भी लड़ना है किसानों को तो। ठीक है भाई, सेनापति अगर हमारा भाग गया, कुछ हो गया, तो क्या अगला सेनापति तैयार नहीं होता सेना के अंदर? या फिर अगर वो नहीं आना चाहते हैं तो अभी भी उनको मौका दिया गया है। जो उनकी यूनियन जो जत्थेबंदियां चुनाव लड़ रही है ना, उनके हर एक जिला अधिकारी ने सबने बोला है या तो आप छोड़ दीजिए चुनाव लड़ना, नहीं तो हम इन झंडों को छोड़ के हम दूसरी यूनियन में शामिल हो जाएंगे, उनके साथ लड़ेंगे। आप देखना आने वाले समय में उग्रहा साहब को ना चाहते हुए भी हरियाणा की जत्थे जो किसान है उनकी अगुवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे को हमारा सेनापति चाहिए। हमारा सेनापति अगर जोगिंदर सिंह उग्रहा जी है तो हम उनके साथ में चलेंगे। और पंजाब की जो जत्थेबंदियां हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है, उनकी जत्थेबंदियों का जिन्होंने झंडा उठाया हुआ है, वो झंडा उनका फेंक चुके हैं
और वो जोगेंद्र सिंह उग्रराज जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ। नहीं होगा वीर जी, ये आप मान के चलिए, बिल्कुल भी कोई भी निराशा नहीं है। हमारी देखो शुभकामनाएं उनके साथ है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पंजाब की जनता को हम भी जानते हैं, 1 साल तक हम साथ रहे हैं, उनके दिल को हम भी जानते हैं अच्छी। वो बिल्कुल साफ दिल के आदमी है और साफ बात ही करते हैं। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आप चुनाव मत लड़िए, अगर नहीं मानना चाहते ठीक है लड़िए, और उसका आप इनाम भी देख लीजिएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा 10 मार्च को, आप देख लेना रिजल्ट क्या आता है। और एक सबसे बड़ी चीज, आज तक पंजाब में जब भी चुनाव हुए हैं, 2 चरण में या 3 चरण में चुनाव होते थे, क्योंकि 117 सीटें हैं, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि पंजाब के चुनाव एक ही चरण में हो रहे हैं। ये डर बताता है बीजेपी को कितना डर है। जो अलग अलग नई नई पार्टियां बन रही है, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर ने बनाई हो, चाहे 22 जत्थेबंदियों ने बनाई हो, या चढ़ूनी ने बनाई हो, इसका भी लोग समझ चुके हैं। भुगत भोगी हरियाणा जेजेपी पार्टी बना के बीजेपी को बाहर करेंगे, उनकी गोद में जाके बैठ गए। लेकिन उससे शिक्षा लेते हुए पंजाब बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है, कितनी नई पार्टियां बनो, वो अपना कैंडिडेट पहले ही चुन कर रखेंगे। ये हम भी नहीं कहेंगे उसको वोट दो, उसको वोट मत दो, लेकिन जिसको भी दो अच्छा चुनो, जो आपके लिए लड़ सके उसको चुनो। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੀਪ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ जी, ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ प्रभावित ਕਰਨਗੇ? हरियाणा की राजनीति को बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया है किसान आंदोलन ने। वो इस तरीके से प्रभावित, लोगों ने एक मतलब अपना नजरिया अलग से सेट कर लिया। आज तक जो सेट नहीं हुआ था, वो आज पहली बार लोगों ने नजरिया सेट किया कि हाँ, कौन हमारे लिए लड़ने वाला है, कौन नहीं लड़ने वाला है। इस आंदोलन ने बहुत से लोगों के चेहरे दिखाए। जो ये लोग बोल रहे थे, बीजेपी के बहुत से नेता ऐसे थे जिन्होंने बहुत अनाप शनाप बोला किसानों के लिए, ऐसा कुछ बोला है, बोलते हैं ना तलवार का घाव भर जाता है लेकिन बातों का घाव कभी नहीं भरता। वो बातों के घाव दिए हमारे को। अगर मौका मिला ना कभी, तो इनको सूद समेत वापस किया जाएगा जब भी मौका मिलेगा। हरियाणा की जनता बहुत बुरा इंतजार कर रही है इनका, कि कब चुनाव आए। 2024 तो छोड़ो, जनता ये चाह रही पहले ही चुनाव हो जाए हरियाणा में, एक बार हमारे को मौका तो मिले, हमारे बीच में आए। इनको बीच में आ गए ना, तो इनका भगवान ही रखवाला होगा। इतना इन्होंने घाव दिए हमारे को। ये नहीं सिर्फ बीजेपी में, बहुत से नेता ऐसे थे जो कांग्रेस में भी हैं, दूसरी पार्टियों में भी जो अनाप शनाप बोले थे, उन सब की लिस्ट बनाई हुई है जनता ने, कि समय आने पर इनको जवाब देना है, और जवाब ऐसा दिया जाएगा बिल्कुल ठोक के। इस आंदोलन ने सिर्फ हरियाणा पंजाब की राजनीति को नहीं वीर जी, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को प्रभावित किया है। भले ही लोग उठ के नहीं आए, लेकिन उनको इनके चेहरे दिखाए हैं कि देखो, अगर कोई लड़ने वाला है देश में तो किसान है, मजदूर है। और इन्हीं के कंधे पे बार बार बंदूक रख के चुनाव भी लड़े जाते हैं, हर चीज लड़ी जाती है। किसान पूरे देश का पेट भरने वाला होता है। देश पे जो सीमा की रखवाले के लिए सैनिक जवान होता है, वो भी किसान के ही पुत्र होते हैं। किसी आज तक कोई ऐसा नेता आपने देखा है, किसी नेता का पुत्र फौज में और बॉर्डर पे बैठा हो? आप नहीं, आपने सुना भी नहीं होगा, कभी नहीं जाते ये। तो सबसे देश में अगर कोई है, किसान मजदूर है, यही देश को पेट भरने वाले, बनाने वाले, सब कुछ करने वाले। जीडीपी सभी की डाउन थी, सिर्फ एक खेती की जीडीपी ऐसी थी जो प्लस में थी। ये आपको भी पता है, सबको पता है। तो ये कॉरपोरेट घरानों की जो नजर है ना कृषि के ऊपर, इतनी जल्दी तो इन्होंने गलत जगह पे नजर टेक ली। उसका जवाब इनको हर जगह पे दिया जाएगा। अभी 5 स्टेट में चुनाव है, हमने भी घोषित कर रखा है ये सेमीफाइनल है, फाइनल 2024 में होगा। इस सेमीफाइनल में इनका रिजल्ट आएगा, फाइनल के लिए लोग तैयार हो जाएं। ਦੀਪਕ ਜੀ ਫਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚੀ ਹੈ ਅੱਗੇ? ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਕਰਤਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਮਾਮ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? इस संघर्ष में जो किसानों की संपूर्ण मांगे हैं वो शामिल की जाएंगी, जो मजदूरों की संपूर्ण मांगे वो शामिल की जाएंगी। क्योंकि अभी जो आंदोलन था वो था हमारा 3 कानूनों के ऊपर आ गया था। अभी अगला आंदोलन एमएसपी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, C2+50 के आधार पर फसलों की खरीद, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ, जो सबसे बड़ी मांग है हमारी। जो आत्महत्याएं हमारे देश के अंदर होती हैं, वो होती हैं जो किसान को लोन दिया जाता है ना, और वो लोन वाले
किसान की जमीन की कुर्की करते हैं, हमारे कुर्की बोलते जब्त कर लेते हैं, जिसके कारण किसान आत्महत्या करता है। उन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए अगला आंदोलन जो होगा ना, वो इतिहास को चेंज करने वाला आंदोलन होगा। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਰਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। धन्यवाद वीर जी। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਓ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਰਣ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਧੰਨਵਾਦ।